తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ చూద్దాం. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
గౌరవనీయులైన శాసన పరిషత్తు చైర్మన్ గారు, గౌరవనీయులైన శాసనసభ స్పీకర్ గారు, గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవనీయులైన మంత్రిమండలి సభ్యులు, గౌరవనీయులైన శాసన పరిషత్ శాసనసభ సభ్యులను, శ్రమించే తత్వం గల శాంతి కాములకైన యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని ఈ బడ్జెట్ సమావేశానికి నేను సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఓకాంగ్ చరిత్రాత్మక పరిదర్శన దాంట్లో తెలంగాణ ఉండగా మనమందరం సమావేశం అవుతున్నాను. ప్రభుత్వం కేవలం పరిపాలన మాత్రమే కాకుండా ఒక భవిష్యత్తును రూపొందిస్తున్నది. ఇందులో ప్రతి పౌరుడు పురోగతిలో భాగస్వామిగా ఉంటారు. స్వయం పాలన, గౌరవం, న్యాయబద్ధమైన అభివృద్ధి కోసం ప్రజల ఆకాంక్షల ద్వారా ఒక సుదీర్ఘమైన చరిత్రాత్మక పోరాట ఫలితమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు. రాష్ట్ర అవతరణకు చేసిన త్యాగాలు, విశ్వాసాలను గౌరవిస్తూ ప్రజాపాలన స్ఫూర్తి ద్వారా మార్గదర్శకం పొందుతూ పాలనలో పౌరులను కేంద్ర విధంగా ఉంచడానికి ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి, సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి అభివృద్ధి ప్రయోజనాలు అందేలా చూడడానికి నా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ప్రజాపాలన మార్గదర్శక సూత్రాలను నా ప్రభుత్వం దృఢంగా విశ్వసిస్తుంది. అంటే ప్రజా కేంద్రీకృత పరిపాలన. ఇక్కడ ప్రతి విధానం, నిర్ణయం మరియు కార్యాచరణలో ప్రజా సంక్షేమము, న్యాయం, గౌరవం కేంద్రం బిందువుగా ఉంటాయి. తెలంగాణ రైజింగ్ దిశగా మనము అడుగులు వేస్తున్నాం. సమ్మిళిత వృద్ధి తోకతో ప్రపంచ దిక్సూచిగా మన రాష్ట్రం నిలుస్తుంది అనేది ఈ విజన్. గత సంవత్సర కాలంలో సాహసోపేతమైన సంస్కరణలు, సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ అందేలా మనం పటిష్టమైన పునాదులను వేశాం. ఈరోజు ఈ ప్రయోజనాలను సంఘటితం చేసి అందరికీ గౌరవప్రదమైన విశ్వస్తు సమృద్ధి దిశగా మనలను నడిపించే ఒక రోడ్ మ్యాప్ను నేను మీకు అందిస్తున్నాను. माननीय सदस्यगण, जैसे जैसे हम भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, सरकार ने महत्वाकांक्षी तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यह दस्तावेज भारत सरकार के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप और नीति आयोग के साथ साथ हैदराबाद के प्रतिष्ठित संस्थानों इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और नालसार विश्वविद्यालय के परामर्श से तैयार किया गया है। हम अब धीमी प्रगति से आगे बढ़कर तीव्र आर्थिक विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी वर्तमान आर्थिक मजबूती की ठोस नींव पर खड़े होकर हमने एक परिवर्तनकारी लक्ष्य निर्धारित किया है। साल 2047 तक तेलंगाना को
3 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बनाना, जिनका अंतरिम लक्ष्य 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है। भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति का प्रदर्शन कर रही है, जहां राष्ट्रीय विकास दर 8%, महंगाई दर 1.72% अनुमानित है और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार सुधार देखा जा रहा है। इस संदर्भ में तेलंगाना की अर्थव्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ और लचीली बनी हुई है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 17.82 लाख करोड़ रुपए है, जो 10.7% की प्रभावशाली विकास दर को दर्शाता है। भारत की कुल जीडीपी में तेलंगाना का योगदान 4.99% है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय 4,18,931 रुपये तक पहुंच गई है। साथ ही सरकार ने कीमतों में स्थिरता बनाए रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति को 0.2% के न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित किया गया है। पिछले 2 वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई केंद्रित और ठोस कदम उठाए हैं। बेहतर सिंचाई सहायता और किसान केंद्रित पहलों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही निवेश प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के जरिए औद्योगिक विकास को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही आईटी, व्यापार, पर्यटन और अन्य उभरते क्षेत्रों में वृद्धि के साथ सेवा क्षेत्र का भी विस्तार जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए इन समन्वित प्रयासों ने राज्य की मजबूत और निरंतर आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। The government has adopted the Cure Pure Rare framework as a polycentric strategy to ensure balance and inclusive development across the state, moving beyond the Hyderabad-centric growth model. Under this approach, the core urban region core will evolve into a net zero, knowledge-driven global hub. The peri-urban region will emerge as a manufacturing and logistic engine, and the rural agri-region will be revitalized through climate-smart agriculture, ecotourism, and food processing, together creating a unified, resilient, and future-ready state economy. We are operationalizing the core urban region economy model to ensure sustainable and equitable growth. Telangana is urbanizing rapidly as urban population in projected to the each 53.8% by 2031. In view of this, recently my government has trifurcated the GHMC into 3 separate identity: Cyberabad Municipal Corporation, Malkajgiri Municipal Corporation, and the reconstituted GHMC. This restructuring of the municipal area will enable closer supervision of civic services, quicker grievances redressal, improved infrastructure planning, and more balanced urban development.
It will strengthen democratic decentralization by bringing urban governance closer to the people in the true spirit of the 74th Constitutional Amendment. The government also intend to put in place a statutory framework by enacting the Cure Act, which will replace the existing GHMC Act and bring multiple agencies under the unified framework, including HMWSSB and HYDRA. The enhanced law enforcement and administrative efficiency, and government has reorganized the Hyderabad police jurisdiction into 4 commissionates: Hyderabad, Cyberabad, Malkajgiri, and the newly established Future City Commissionerate across the metropolitan region. क्योर क्षेत्र को प्रदूषणकारी उद्योगों से मुक्त करने के लिए सरकार ने HILT नीति के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ORR के बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को लाइफ टैक्स से छूट देने का आदेश जारी किए हैं। इसकी शुरुआत के तौर पर सरकार क्योर क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। हैदराबाद झीलों और चट्टानों का शहर है और सरकार मुख्य शहरी क्षेत्र की सभी झीलों और तालाबों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। नवनिर्मित हाइड्रा ने 1045 एकड़ से अधिक सार्वजनिक भूमि और जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की शहरी संपत्तियों को सुरक्षित किया गया है। बतुकम्मा, कुंटा, नल्ला चेरू और बामरुक उदुद्दीन दौला झीलों को हाल ही में मुक्त करा करके उनका पुनरुद्धार किया गया है। ये सभी मुक्त कराए गए तालाब विकास केंद्रों के रूप में उभरेंगे, जो एक फलते फूलते झील अर्थव्यवस्था लेक इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे और महिलाओं को अस्थायी आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे। The government is revitalizing Hyderabad ecological corridor through the 55-kilometer Mushi riverfront transformation project extending from the Usman Sagar and Himayat Sagar reservoir to Gandhi Sarovar. Phase 1 of the project is currently under implementation as part of Mushi regeneration. Godavari Phase 2 and 3 projects are already sanctioned and work in brisk progress. This project will provide 2.5 TMC water for Musi rejuvenation by linking Usman Sagar and Himayat Sagar, and 300 MGD drinking water to Cure area. As a part of Musi rejuvenation, by 45 STP are operational and 39 STP are under construction. The treated water will be supplied to a data center, landscaping of ORR, other industrial use and construction industry. The government is undertaking the prestigious Gandhi Sarovar project at the confluences of the Musha and Isha
reevaluate is envisioned as a world-class experimental center dedicated to the teaching of Mahatma Gandhi. आउटरोड रिंग और 360 किलोमीटर लंबे रीजनल रिंग रोड के बीच स्थित पेरी अर्बन रीजन इकोनॉमी का उद्देश्य राज्य के विनिर्माण एमएसएमई क्लस्टर इको इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करना है। औद्योगिक क्षेत्र अब हमारी अर्थव्यवस्था में 3.04 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे रहा है। तेलंगाना का पश्चिमी क्षेत्र यानी कोंडांगल क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में एक औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। सरकार ने परिवर्तनकारी विकास के हिस्से के रूप में मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोडांगल के अलावा आगामी रेडियल रोड सेकेंड से सटे बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई है। रेडियल रोड के साथ साथ बिजली और पानी की उपयोगिता की भी योजना बनाई जा रही है। मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोंडागल के हाउसिंग लेआउट का काम तेज गति से चल रहा है और जल्द ही यहां बुनियादी ढांचे का काम शुरू किया जाएगा। 3,245 एकड़ में फैली राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जहीराबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी, जिसे भारत सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू किया गया है, अब एसपीबी द्वारा ईपीसी अनुबंध प्रदान करने और अन्य गतिविधियों के साथ परिचालन में आ रही जहीराबाद NIMZ के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। टू एनहेंस कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूव मोबिलिटी बिटवीन द आउटर रिंग रोड एंड द रीजनल रिंग रोड, the government has proposed the development of radial road, which will be facilitate smoother traffic movement and support the region's growing urban and economic activity. A greenfield Hyderabad-Amravati expressway is being developed from Hyderabad, passing through Future City and Amravati and extending up to Bandar Port to strengthen regional connectivity and facilitate faster movement of people and goods. हाल ही में भारत सरकार ने हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे के लिए 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि शमशाबाद को बुलेट ट्रेन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। To improve air connectivity in the region, Government of India has also approved proposal for establishment of 2 airports at Warangal and Adilabad. The government is taking measures to ensure speedily establishment to these airports. The Future City Development Authority, constituted on 12 March 2025, spans about 765 square kilometer, 56 villages and 7 mandals, and will anchor industrial and urban growth in the rural region. At the core will be Bharat Future City, a 30,000 acre greenfield smart city designed on the 15-minute city model with walkable mixed-use neighborhood
development premises have commenced and comprehensive master plan for FCDA is being prepared to guide long-term growth and driving Telangana future economy. ऊर्जा क्षेत्र में हमारी अनुबंधित क्षमता बढ़कर के 23,187 मेगावाट हो गई है, जिसमें 44.55 हिस्सा सराहनीय रूप से नवीनीकरणीय स्रोतों से आता है। ग्राम पंचायतों तक पहुंचते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया गया है। द गवर्नमेंट इज आल्सो कमिटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग तेलंगाना इनटू a global hub for innovation, investment and sustainable development. In this direction, the government recently organized the Telangana Rising Global Summit in Hyderabad for 2 days. The summit brought together leading investors, global business leaders and prominent industrialists from various sectors. During the summit, several memorandum the understanding were signed with investors expressing their commitment to invest rupees 5.75 lakh crore. These investments are expected to accelerate economic growth, generate large-scale employment opportunity, and strengthen Telangana's position as a leading destination for the global investment. The government has secured a historic achievement with the inauguration of the Saffron CMS International Aero Engine MRO facility in Hyderabad, the first and largest of the kind in India. हाल ही में हैदराबाद में 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1700 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है। हमारा निर्यात प्रदर्शन उत्कृष्ट है और 1.61 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक निर्यात के साथ हम भारत में 7वें स्थान पर हैं। इसमें एरोस्पेस देश क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है, जो हमारे कुल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मूल्यांकन में तेलंगाना को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए सुरक्षित और नैतिक विदेशी रोजगार को बढ़ावा देती है। इस एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य निर्माण और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में यूएई, जर्मनी, जापान, यूके और कनाडा सहित 16 से अधिक देशों से 13,930 से अधिक उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया है। साथ ही यह एजेंसी उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के लिए तैयार करने हेतु विदेशी भाषा प्रशिक्षण, कौशल विकास, वीजा मार्गदर्शन और प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, प्री डिपार्चर ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। सेवा क्षेत्र राज्य का प्रमुख स्तंभ बना हुआ है,
जो राज्य के सकल मूल्य वर्धित में 68.6% का योगदान देता है और 13.5% की दर से बढ़ रहा है। हैदराबाद ने एक वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जहां भारत के लगभग 20% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थित है। तेलंगाना वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र बना हुआ है। विश्व आर्थिक मंच और अन्य देशों में गए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने निवेश हासिल किया है, जिससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। हमारा आईटी निर्यात 3.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 9.39 लाख से अधिक नौकरियों को आधार प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए हमने तेलंगाना पर्यटन नीति 2025-2030 शुरू की है, जिसका लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3 लाख नौकरियों का सृजन करना है। वी हब समावेशिता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं, जो सभी 33 जिलों में 700 से अधिक महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने दावोस में एक नई नेक्स्ट जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026 और 2030 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक तेलंगाना को एआई अनुसंधान एवं विकास और उन्नत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया के शीर्ष 5 वैश्विक लाइफ साइंसेज क्लस्टरों में से एक के रूप में स्थापित करना है। लाइफ साइंसेज क्षेत्र ने 73,360 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 2.5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हुई हैं। आरएआई ढांचे के तहत हम आय के स्रोतों में विविधता ला रहे हैं और किसानों को कृषि उद्यमों के रूप में सशक्त बनाने में के लिए मूल्यांकन श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं। कृषि तेलंगाना की धड़कन बनी हुई है। सरकार ने 2025-26 में इस क्षेत्र के लिए 26,684 करोड़ रुपया आवंटित किया है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 236.87 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जिसमें धान, मक्का और कपास का वर्चस्व कायम है। इसके अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन में भी स्वस्थ वृद्धि देखी गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.11 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर रहे हैं। किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए वानकलम 2025 के दौरान हमने निवेश सहायता योजना रैतु भरोसा के तहत मात्र 9 दिनों के भीतर 8,744 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 71.86 लाख टन धान की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। इसमें 39.08 लाख मीट्रिक टन सन्ना बीएम शामिल है। 19,099 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी गई है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए हमने सन्न रकम धान के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जारी किया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ हो रहा है और चावल की उत्कृष्ट किस्म की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख रुपए का ऋण
माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे 20,616 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 25 लाख से अधिक किसानों का कर्ज का बोझ कम हुआ है। सरकार पारंपरिक बिजली के पंप सेटों को सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों में बदलने का लिए कदम उठा रही है। यह पहल संधारणीय ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को विश्वसनीय और पर्यावरण की अनुकूल सिंचाई सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी। भूमि संबंधी मुद्दों के अस्थायी समाधान के लिए सरकार ने तेलंगाना भू भारती अधिनियम 2025 लागू किया है, जिसके तहत एक अद्वितीय भू आधार भूमि पहचान प्रणाली शुरू की गई है। जमीनी स्तर पर भूमि प्रशासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों को 8,900 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें 5,010 ग्राम पालन अधिकारी और 3,520 लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक शामिल हैं। यह पहल किसानों की समस्याओं के समाधान और भूमि संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटारे में मदद करेगी। इस वर्ष 3.76 लाख नए पट्टादार पासबुक जारी किए गए हैं। भू भारती अधिनियम की परिकल्पना के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए पंजीकरण, राजस्व और सर्वेक्षण गतिविधियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मेरी सरकार सिंचाई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के बंटवारे में राज्य के हितों की रक्षा के लिए सभी मंचों पर दृढ़ता से हर संभव उपाय कर रही है। 2004 से जलाय मग्न के तहत शुरू की गई लंबे समय से लंबित परियोजनाओं और 2014 एवं 2015 में शुरू की गई कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने अगले कुछ महीनों में लंबित भूमि अधिग्रहण और R&R को पूरा करने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में सभी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है। आने वाले 3 वर्षों में इन सभी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके एक बड़ा आयकट विकसित किया जाएगा। सरकार सिंचाई में निरंतर निवेश, वैज्ञानिक नवाचार और बाजार संपर्क के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि तेलंगाना के किसान न केवल चुनौतियों का सामना कर सकें बल्कि समृद्ध भी हों। सरकार तेलंगाना के हर परिवार के कल्याण और गरिमा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते वर्षों में राज्य के कई पात्र परिवार नए राशन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे आज यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उनकी वर्षों पुरानी यह प्रतीक्षा और आकांक्षा पूरी हो चुकी है। सरकार ने पूरे राज्य में 15.12 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। इतना ही नहीं, जो राशन कार्ड पहले से मौजूद थे उनमें भी 19.44 लाख नए सदस्यों को नाम जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा राशन कार्डों में 19.44 लाख नए नाम सदस्यों को जोड़ा गया है। वर्तमान में 1.05 करोड़ राशन कार्ड मौजूद हैं, जो 3.38 करोड़ यूनिट को कवर करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बड़ी संख्या में परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से महीन चावल वितरण योजना भी लागू कर रही है। इस पहल के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 6 किलो महीन चावल मिल रहा है, जिससे पूरे राज्य में लगभग 3.38 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों को प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गरीबों के लिए आवास की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है इंदिरम्मा इंदलू योजना के तहत सरकार ने 4.5 लाख
घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 घर आवंटित किए गए हैं। यह योजना 22,500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू की जा रही है। अब तक 3,24,536 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2,62,449 घर वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए जनजातीय आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों को अतिरिक्त कोटा दिया गया है और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को इस कार्यक्रम के तहत संपूर्ण संतृप्ति पर कवर किया गया है। निर्माण की प्रगति में सहायता के लिए सरकार विभिन्न चरणों में पूरे हुए घरों के लिए पहले ही 5,73.84 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। मनरेगा के माध्यम से हमने 6.52 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया है। महिला सशक्तिकरण हमारी ग्रामीण राजनीति के केंद्र में है। इंदिरा महिला शक्ति पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को उद्यमियों के रूप में बदला जा रहा है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों से लेकर के कैंटीन तक विभिन्न उद्यमों का प्रबंधन कर रहे हैं। इस रणनीतिक हस्तक्षेप का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महिलाएं हमारी प्रगति की मशाल वाहक है। महालक्ष्मी योजना अपनी सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस योजना के अंतर्गत महिला यात्रियों को अब तक 269.68 करोड़ निःशुल्क बस यात्राओं का लाभ उठाया है। इससे यात्रा व्यय में 9,222 करोड़ से अधिक की संचयी बचत हुई है। यह वित्तीय स्वायत्तता महिलाओं की गतिशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। महालक्ष्मी योजना में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो 42.90 लाख पात्र परिवारों को लाभान्वित करता है और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। गृह ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के तहत 53.09 लाख